Good afternoon. Uh, at the very outset of this press briefing, I would like to offer my heartfelt gratitude to the Mede fraternity gathered here today to cover our press briefing. We are Team Arunachal Pradesh Teacher Educators Association. I am Sri Tayondai, President of the association. To my left is Sri Mudangomo, General Secretary, and to my right is Mrs. Yamalika, spokesperson. Uh, while thanking the Major fraternity, before I go on to the details of this press briefing, I would like to thank my members, colleagues sitting back there in various diets and SCRT for their constant support, and to all the well wishers who have been supporting us in this genuine movement. Today, we have come here to give you the latest update, the development of our protest. As it is already known to all the media houses and public regarding our issue is very genuine, very genuine in the sense it is regarding our monthly salary. The monthly salary of the staffs of Diets of Arunachal Pradesh is very irregular since 2019 till date. So, uh, having no other options left, the association on 12th May 2026 intimated the government that within 15 days to 16 days, if you are not going to give us a written assurance regarding the resolving of this salary issue, the association is going for a democratic movement. The democratic movement through pen down protest. So the first pen down protest was observed peacefully without damaging any government properties on 29th May 2026. There was no reply from government, and we went on to observe the second phase that was on 4th and 5th June 2026. तो वो 2 दिन में फिर गवर्नमेंट का कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो वी वर सपोज टू गो फॉर आवर थर्ड पेज दैट इज इनडेफिनिट इन नेचर. हमारा इनडेफिनिट पेन डाउन स्ट्राइक was scheduled with effect from 15th June 2026. However, before that we were invited by the government. On behalf of government, we were invited by Honorable Advisor to the Honorable Minister Education, Sri Muchumiti sir, and we had a very fruitful and positive discussion in his residence. सर का घर में हम लोग एकदम फ्रूटफुल और हेल्दी डिस्कशन हुआ, जिसमें हमें पूरा होपफुल लगा कि सरकार जो हमारा मांग को कॉग्निजेंस में ले चुका है और वो लोग प्रायोरिटाइज क्या है. तो द मीटिंग आउटकम इज हियर, इट विल बी सर्व टू यू. ये हमारा उस मुचुमिती सर जो ऑनरेबल एडवाइजर टू मिनिस्टर एजुकेशन का साथ हमारा जो मीटिंग हुआ है उसका जो आउटकम मेरा हाथ में है, मीटिंग मिनट जो है. तो इसमें क्लियरली लिखा है कि गवर्नमेंट जो इसको प्रायोरिटी में लिया है और द गवर्नमेंट हैज एश्योर्ड द एसोसिएशन दैट सिंस एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस एंड अराइव एट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन एट द अर्लीस्ट. तो अर्लीस्ट में एक सॉल्यूशन लाने का बात किया था, हमें बताया गया था. एट दैट टाइम सर पासांग दोरजी सोना जी, Honorable Minister Education, was out of station. He was somewhere in Delhi or other places, but he was not in station. So after the meeting, at the end of the meeting, advisor to Honorable Minister Education requested us to defer. हमारा एसोसिएशन को थोड़ा डिफर कर दीजिए, आप लोग का बात को कॉग्निजेंस में लिया है और इसका प्रायोरिटी में गवर्नमेंट ले रहा है. गवर्नमेंट तो कवर पहुंच चुका है. तो हम लोग एकदम अच्छा से बात करके उस मीटिंग में निकलने के बाद विद इन नो टाइम वी
responded to the meeting minutes with the Honorable Minister Education and उसको मानते हुए, गवर्नमेंट को मानते हुए, हमने अपना जो थर्ड पेज जो indefinite in nature को we deferred it from 15 June to 38 June 2026. So in between, Honorable Minister Education came back to the station and we were invited. हम लोगों को 23rd June 2026 में असेंबली, अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑनरेबल मिनिस्टर का ऑफिस चैम्बर में हम लोग को बुलाया और वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, 1.5 आवर का डिस्कशन हुआ, वेर इन वी एक्सपेक्टेड कि लास्ट मीटिंग में जो मिनिस्टर एजुकेशन का साथ एडवाइजर का साथ जो हमने मीटिंग बैठा था, उस मीटिंग में हमको थोड़ा एश्योरेंस दिया कि गवर्नमेंट जो कॉग्निजेंस लिया, तो वी वर होपिंग दैट द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, व्हाट हैव दे प्रायोरिटाइज, व्हाट मैकेनिज्म्स दे हैव डेवलप्ड, हम लोग को वो बताएगा बोल के हम लोग उस आशा में किया। लेकिन जो हमने सोचा वो हमारा एग्जैक्ट सोच में नहीं निकला रिजल्ट। इतना जब हमको तो जो बोलने दिया, मेरा तो 1 पॉइंट डिमांड हमने बताया, एसोसिएशंस ओनली 1 पॉइंट डिमांड इज डिसबर्समेंट ऑफ आवर सैलरी थ्रू स्टेट एक्सचेकर। वही एक जरिया है, वही एक मैकेनिज्म है। हम सबको पूरा पता है कि अगर उससे सरकार कर देता है, वी बीइंग द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अगर उससे सरकार हम लोग को कर देता है तो हमारा ये लाइफ टाइम रिजॉल्व होता है। लेकिन मिनिस्टर एजुकेशन हैड ए डिफरेंट आइडिया। उसने कहा कि वी आर वर्किंग ऑन अ मैकेनिज्म, तो उसमें भी मैंने बोला था सर मैकेनिज्म को हम लोग विश्वास नहीं रहा। वी वांट अ परमानेंट सोल्यूशन एंड परमानेंट सोल्यूशन इज डिसबर्सिंग आवर सैलरी टू स्टेट हेड। उससे और दूसरा रास्ता होता नहीं है। हम लोगों ने बहुत जगह हमने भी ढूंढ के देखा है, नहीं होता है। फिर भी सर बोल रहा था, तो फाइनली उसमें हमारा डिसीजन आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन, द आउटकम वाज, आई मीन टू से डिस्कशन वाज रिगार्डिंग, सर बोल रहा था कि एक मैकेनिज्म, अगर उस मैकेनिज्म में नहीं होता है तो स्टेट हेड से हम लोग जरूर करेगा। लेकिन जब सरकार हमको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब हमको 60% सैलरी अब लोग के लिए दे रहा है, इसको हम लोग डायरेक्ट फोरगो करना भी अच्छा नहीं है। my reply means our association reply was, हम लोगों को रिटर्न एश्योरेंस देना है एंड एक समय देना है, एटलीस्ट इफ नॉट एग्जैक्ट एक टेंटेटिव डेट देना है। तो मीटिंग में हम उसने बोला एक मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है। हम तो सोचा था मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है जब ऑनर एडवाइजर का साथ में मीटिंग हुआ था, लेकिन उस मीटिंग में फिर वो बोल रहा है कि एक मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है, फिर उसमें नहीं होगा तो स्टेट हेड से हम लोग जरूर कर देगा, फिर एक टेंटेटिव डेट देगा। तो इन द नेक्स्ट डे आफ्टर द मीटिंग ऑन 24th, द मीटिंग मिनट्स दैट वाज the meeting that was held with the Honorable Minister Education was handed over to us. ये हम लोगों को हैंड ओवर किया और इसमें डिस्क्रिपेंसी है। जो मीटिंग में बात हुआ है यहाँ कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं है। एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट disheartening and disappointed moment for all of us, the association. So after receiving this minutes, एंड ये मिनट्स भी आप लोग को हम देंगे। यहाँ में हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर चेयरमैन था एंड मुचुमिती सर ऑनरेबल एडवाइजर टू मिनिस्टर एजुकेशन भी रहा एंड 8 of us हमारा मेंबर्स है। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का साथ 8 मेंबर्स और 6 मेंबर जाके मीटिंग में हम लोग बैठा है और मीटिंग में पूरा डिस्क्रिपेंसी है। जो वहाँ में बात हम लोग किया है इसमें वो रिफ्लेक्शन नहीं आया है। So immediately after receiving this letter, we called the general body meeting of the association, wherein all the
advisory boards, principals, joint secretaries, and various members, senior members of the association were invited, and we had a virtual meeting, general body meeting, but through virtual mode on 26 June 2026. तो इसमें हमने जो वहाँ में हम लोगों ने, मैं अकेला नहीं सुना, 8 of us इंक्लूडिंग मिनिस्टर एजुकेशन एंड एडवाइजर टू मिनिस्टर एजुकेशन. तो अभी इसमें इसको उन लोग को सबको पढ़ने दिया और कहानी वहाँ में जो हुआ था उसको बताया. तो जनरल बॉडी मीटिंग काउंसिल में ये निर्णय लिया कि एवरी मेंबर ने ये निर्णय लिया कि नो, आवर डिमांड इज वेरी जेन्युइन. हमको 8 साल से, अभी 9 ईयर चल रहा है, इरेगुलर सैलरी हमारा हो रहा है, तो हमको स्टेट हेड से ही देना है एंड रिटर्न एश्योरेंस देना पड़ेगा गवर्नमेंट. अदरवाइज हम लोगों को थर्ड फेज में जाना ही पड़ेगा. देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन बट टू गो फॉर द थर्ड फेज, दैट विल बी इनडेफिनिट इन नेचर. लेकिन उसमें यह भी निर्णय लिया कि एटलीस्ट अनदर 1 वीक टू 10 डेज गवर्नमेंट को मौका दीजिए रिप्लाई करने के लिए. सो कंप्लाइंग विद दिस जनरल बॉडी मीटिंग मिनट्स, जो उसमें हमारा डिस्कशन निकला, द एसोसिएशन ने ऑन 27th नेक्स्ट डे में रेस्पॉन्स टू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग इश्यूड बाय योर एस्टीम ऑफिस बोल के ऑनरेबल मिनिस्टर सर को हमने रिप्लाई लिखा. यहाँ डिस्क्रिपेंसी क्या हुआ, वहाँ डिस्कशन क्या हुआ था, यहाँ क्या आया, इसमें डिटेल में लिख दिया है, इसको भी आप लोग बाद में ले लीजिएगा. एंड देन हियर इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट up to 8 July, that is day after tomorrow, we still have 2 more days to go. Up to 8 July, you have to give us a written assurance that our irregular salary issue, which is already almost a decade old, तो इसको रिजॉल्व करेगा बोल के आप हमको रिटर्न देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है. ये हमारा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते हमारा एक राइट है. नो वन कैन कर्टेल दिस. तो 8 जुलाई तक, 8 जुलाई 2026 तक अगर हमको रिप्लाई नहीं मिलता है, वी आर ऑलवेज ओपन. हमने उस दिन से पीएस को बोल के रखा है कि जब भी सर हमको मौका मिलेगा हम लोग मिलने जाएंगे. अपना तरफ से भी हम लोग प्रपोजल डाल के रखा है अपॉइंटमेंट के लिए, और बुलाएगा तब तो 100% जाएगा. तो 8 जुलाई तक लेकिन हमको रिटर्न एश्योरेंस नहीं आता है, तो द एसोसिएशन इज गोइंग फॉर द थर्ड फेज. तो ये रिप्लाई देने के बाद यहाँ में फिर एक लेटर भी लिखा है हमने. दिस लेटर इज रिगार्डिंग हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड पर एनम. हमारा अरुणाचल का जो डाइट्स एम्प्लॉयज को साल भर में कितना अगर स्टेट हेड से एडजस्ट करने से देना है, 40% तो स्टेट गवर्नमेंट दे ही रहा है, 60% थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट. वो लोग जिसको फॉरगो करना नहीं चाहता है, और हम कभी नहीं बोलेंगे फॉरगो करना है. फॉरगो नहीं करना है, वो आप लोग का ऊपर है. लेकिन हमको एसोसिएशन को, हमारे एम्प्लॉयज को हर महीना जैसे बाकी लोग सैलरी मिलता है वैसे हमको भी देना है. तो इसमें क्लियरली लिख दिया है कि 40% गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश दे, तो 60% हमारा रिक्वायरमेंट है. 5,59,20,730 रुपीज ओनली पर ईयर, जो अगर महीना में बोलने से 77 लाख अप्रोक्सीमेटली. तो इतना पैसा सिर्फ को हम लोग सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, हम लोग स्टेट हेड से हम लोग को एडजस्ट कीजिए, ताकि ये प्रॉब्लम हमको बार बार होना ना पड़े. माने वी आर गोइंग टू सच अ हार्ड सिचुएशन. माने अनकाउंटेबल नंबर ऑफ, क्या बोलेगा, दुख तकलीफ हमारा जा रहा है. देयर इज
नो माने कॉन्फिडेंस नहीं रहा डायरेक्ट एम्प्लॉयज का भी, कुछ काम करने से भी दिलो दिमाग लगा के काम नहीं कर पा रहे। अगर आप अभी पूछने से भी अभी भी आप बताए, टुडे 6 जून हमारा, सॉरी जुलाई, हमारा जून महीना का सैलरी को भी कुछ अता पता नहीं अभी तक। लेकिन अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दे हैव ऑलरेडी गॉट द सैलरी, द सैलरी हैज बीन ऑलरेडी क्रेडिटेड इन देयर अकाउंट्स। ये तो कितना अनफॉर्चुनेट, और ये एक दो महीना का बात नहीं है, ये सालों से होते रहा, 2019 से होते रहा बार बार। आई थिंक सो दिस इज आवर 4th 5th टाइम having this press briefing regarding the same issue only, and I don't know why government is not interested in solving our problem. हम लोग क्या गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है? अरे लास्ट टाइम मेरे स्पोक्स पर्सन ने क्लियरली एकदम विविडली अपना ये में भी बताया था कि हम लोग का रोल क्या है। क्वालिटी एजुकेशन बोलते हैं, क्वालिटी एजुकेशन को लाने के लिए हम लोग टीचर एजुकेटर्स का कितना रोल है, इसको तो एकदम डिटेल में ये मैडम लास्ट टाइम बताया, तो उस पर मैं अभी मैं नहीं जाऊंगा। तो ओनली 5,59,20,730 रुपीज पर एनम हमारा रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट चाहे तो इसको मैं कॉन्फिडेंटली सोचता हूं कि गवर्नमेंट कर सकता है। देन फाइनली वी हैव submitted our resentment letter after the meeting with Honorable Minister Education. So recently again we had a meeting. This was CEC meeting, Central Executive Committee meeting, जिसमें अगर 8 तारीख तो हमको नहीं रिप्लाई नहीं देगा, हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करेगा, रिटर्न एश्योरेंस नहीं देगा, तो हम लोग जो है थर्ड एंड फाइनल फेज विच विल बी इनडेफिनिट इन नेचर उसमें जा रहा है। एंड दिस इज द SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स फॉर द थर्ड फेज। इसको भी आप लोगों को मैं प्रेस ब्रीफिंग के बाद आप लोगों को शेयर कर दूंगा। सो नाउ बिफोर आई कंक्लूड, लेट मी एश्योर every citizen of Arunachal Pradesh that being intellectual in nature, being matured, our movement, our protest will be completely in a democratic way, in a disciplined manner. Only पेन जो है डाउन होगा, पेन काम नहीं करेगा। बोलते हैं ना, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, कोशिश करके देखेगा। तो we have decided to sail together or to sink together. या तो हम नाव में तैर के साथ में जाएंगे या तो हम डूब जाएंगे। ये हमने इस बार अरुणाचल प्रदेश टीचर एजुकेटर्स एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स है, सदस्य है, हमने निर्णय लिया है। और हमने 225 पेजेस का ये अपना अंडरटेकिंग का साथ भी सबमिट किया है मिनिस्टर सर को, टॉप टू बॉटम। ये डेप्यूटी डायरेक्टर प्रिंसिपल से लेके मल्टीटास्किंग स्टाफ तक अपना सब अंडरटेकिंग दिया है कि ये हमारा राइट है, इसको हम लोग अपना राइट सोच के हम लोग लड़ेगा, अंतिम ढंग तक लड़ेगा जब तक हमारा ये सॉल्व नहीं होगा। सो टुडे on this 6th day of June 2020, July 2026, I, on behalf of association, declare that if our genuine appeal is not heard by the government on or before 8 July 2026, we are going ahead with our third phase of the democratic movement, which will be indefinite in nature. But before we go for indefinite, once again I would like to request our government with folded hand, मैं सर झुक के हाथ जोड़ के मेरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर पेमा खांडू जी, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर चौनामेन जी, ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन श्री पासांग दोरजी सोना जी, ऑनरेबल
advisor to Minister Education Sri Mochumiti ji and our learned commissioner Sri Amjad Thak ji IAS, Commissioner Education, and all the stakeholders who will be involved in resolving this issue to please do the needful at the earliest possible time and resolve this issue once and for all. Thank you.